अब बारी है आज के हेडलाइंस की। अमृतनगर तृणमूल कांग्रेस की ओर से पश्चिम बंगाल इमरजेंसी रिलीफ फंड में 1,69,000 की 140 चेक प्रदान की गई। रानीसर इलाके में सड़क मरम्मत का कार्य नहीं होने की वजह से वहां के स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। दुर्गापुर महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से इलाके में जरूरतमंद लोगों में सब्जी वितरण की गई। SUCI पार्टी की ओर से अमेरिकी लोगों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। फायर सर्विस की सहायता से जामुड़िया के विभिन्न इलाकों को सैनिटाइजेशन करवाया गया। चित्रा सिनेमा हॉल के पीछे पंजाबी पाड़ा में एक घर के अंदर से 12 वर्षीय किशोर के एक शव को खून से लथपथ बरामद किया गया। अब खबरें विस्तार से। अमृतनगर तृणमूल की ओर से कार्यकर्ता अध्यक्ष MD साबिर, बापी चक्रवर्ती एवं उच्च अधिकारियों सहित श्रमिक बंधुओं की ओर से आसनसोल दक्षिण के विधायक एवं अड्डा के चेयरमैन तापस बनर्जी के हाथों में 1,69,000 की 140 चेक प्रदान की गई। अमृतनगर तृणमूल की ओर से कार्यकर्ता अध्यक्ष MD साबिर, बापी चक्रवर्ती एवं उच्च अधिकारियों सहित श्रमिक बंधुओं की ओर से आसनसोल दक्षिण के विधायक एवं अड्डा के चेयरमैन तापस बनर्जी के हाथों में 1,69,000 का 140 चेक प्रदान की गई। यह चेक पश्चिम बंगाल इमरजेंसी रिलीफ फंड में अनुदान राशि के तौर पर दी गई है ताकि कोविड-19 एवं अम्फान तूफान की वजह से हुए क्षति की भरपाई की जा सके। इसके अलावा लोगों में कोविड-19 एवं अम्फान की वजह से हुए शिकार लोगों में सहायता प्रदान की जा सके ताकि लोगों को हुए क्षति की कुछ हद तक भरपाई हो। इस मौके पर ग्राम पंचायत सभापति विनोद नोनिया, एगरा ग्राम पंचायत प्रधान रीना दास, आसनसोल ग्रामीण अध्यक्ष देवनारायण दास, विवेक मंडल, सुबीर बनर्जी, सुदर्शन खां इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। विश्वग्रासी मारान भाइरास कोविड-19 सारा भारतवर्षের সাথে সাথে পশ্চিম বাংলার বুকে গ্রাস করেছে। তার সাথে সাথে বিধ্বংসী আমফান ঝড় সোনার বাংলার বুকে গ্রাস করলো। তাই আমাদের বাংলার গর্ব মমতা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তার আদর্শ অনুপ্রেরণাকে মাথায় রেখে এই আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস এই অসহায় মানুষগুলোর পাশে থাকার জন্য আমাদের শিল্পাঞ্চলের জননেতা তথা শ্রমিক নেতা এবং আসানসোল দক্ষিণ গ্রামীণের কার্যকরী সভাপতি মাননীয় মোহাম্মদ সাবিরের নেতৃত্বে এবং আমার কলিয়ারি আধিকারিকগণ এবং শ্রমিক বন্ধুদের সহযোগিতায় আমাদের এলাকার বিধায়ক তথা এডিডিএ চেয়ারম্যান সম্মাননীয় তাপস ব্যানার্জির হাতে মুখ্যমন্ত্রীর আপদকালীন ত্রাণ তহবিলে আমরা 139টি চেক প্রদান করলাম। তার জন্য আগত বিধায়ক, ব্লকের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং কলিয়ারির আধিকারিকগণ এবং শ্রমিক বন্ধুদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বাংলার গর্ব মমতা, দেশের গর্ব মমতা। আপনারা মমতা ব্যানার্জির সাথে থাকুন, মমতা ব্যানার্জির পাশে থাকুন, তার প্রতি আস্থা রাখুন। জয় বাংলা। খুব উৎসাহব্যঞ্জক দিন। যে মানুষ যখন অসহায় হয়, বিপদে পড়ে, তখন দেখা যায় আলটিমেটলি মানুষরাই তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। আজকে আপনারা দেখলেন এই অমৃতনগর কলিয়ারি ইউনিটে আমাদের সাবির আছে, আমাদের দলের কার্যকরী সভাপতি। তাছাড়া এই অঞ্চলে আমাদের ইউনিয়নেও দেখেন উনি। এই অঞ্চলে সর্বস্তরের মানুষ, 150 জন মানুষ তাদের স্বোপার্জিত অর্থের একটা অংশ যে আমাদের
এই কোভিড-19 বা যে মহামারী রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে, তাদের সরকারের কোটি কোটি টাকা খরচা হচ্ছে, আমাদের রাজ্য সরকারের এত মানুষের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে। তো সরকারের তো সামর্থ্য নেই। তো এই মানুষ আজকে তারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পাশে, তারা আর্থিক অনুদান নিয়ে তারা আজকে এখানে দাঁড়াবে। এটা আমি দেখছি, আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে যেমন মানুষ ত্রাণ নিতে আসে, তার অসহায় অবস্থার মধ্যে আমরা দেখেছি, তাদেরকে আমরা লাইন করিয়ে তাদের হাতে যথাসাধ্য খাদ্যদ্রব্য আমরা তুলে দিতে পেরেছি। হয়তো যদিও সেটা পর্যাপ্ত নয়, সরকার চেষ্টা করছে। আমরাও আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে আমাদের দলীয় কর্মী, আমাদের সমাজকর্মী, আমাদের পরিচিত, আমাদের আত্মীয়, আমাদের বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় এই অঞ্চলে করেছি। এর আগে প্রচুর মানুষ চেক দিয়েছেন। এর আগে এখান থেকে কোঅপারেটিভ থেকে প্রায় 60,000 টাকার একটা চেক অর্থমূল্য 66,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। আজকে যেটা 150 জন মানুষ, তার মধ্যে আপনারা দেখলেন কলিয়ারিতে যারা কাজ করে তাদের পোশাকে দেখলেন, যিনি রিটায়ার করেছেন তিনি আছেন, আমাদের পঞ্চায়েতের সদস্যরা আছেন, আরও যারা আছেন, সবাই মিলে তারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে এই চেকগুলো আমার মাধ্যমে তুলে দিলেন। এটা একটা, আমি বলি, এটা যদি কলকাতায় হতো, এটা একটা অল ইন্ডিয়া নিউজ হতো। মানে আমার তো নিজের মন, আমি দেখিনি একদিন পর্যন্ত যে 150 জন মানুষ একসঙ্গে একত্রিত হয়ে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज शीतलदास 5 नंबर कॉलोनी तथा रानीसर इलाके में सड़क मरम्मत का कार्य नहीं होने की वजह से वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। रानीगंज शीतलदास 5 नंबर कॉलोनी तथा रानीसर इलाके में सड़क मरम्मत का कार्य नहीं होने की वजह से वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के अनुसार एमपी लेड द्वारा इन दोनों इलाके में सड़क मरम्मत के लिए 18 लाख रुपए सैंक्शन किए गए थे, परंतु अब तक सड़क मरम्मत न होने की वजह से स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं। शीतलदास के स्थानीय लोगों द्वारा अब तक सड़क मरम्मत न होने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बात की जानकारी मिलते ही रानीगंज शहर मंडल बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी देव कुमार बोस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया एवं लोगों को शांत करवाया। যেটা হচ্ছে শীতলদাস 5 নম্বর কলোনি, মানে পারসন্ডার ঠিক বিপরীতে। ওই রাস্তাটা প্রায় 1.5 কিলোমিটার রাস্তা। আজ থেকে 1.5 বছর আগে আমরা মাননীয় সাংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। দেন অ্যান্ড দেয়ার তিনি সেটা পাবলিকের ওই অবস্থা বুঝে স্যাংশন করেছিলেন। স্যাংশনের বোর্ড লেগে যাওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী আমরা কি করি, এই টাকা যখন চলে আসে, সেই টাকা ফান্ডে আসার পর একটা নো অবজেকশন দরকার হয়। আমাদের যে এমসি মেয়র রয়েছেন মাননীয় জিতেন তিওয়ারি, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে টালবাহানা করে তিনি সে রাস্তাটা অনুমোদন করেননি। মানে নিজেরাও করবে না, আর বাবুলদার স্যাংশন করা মানে তারা উন্নয়নের নামে এটাই ভাবছে যে ওইটা করে দিলে যদি বাবুলদার নাম হয়ে যায়। কিন্তু বাবুলদা, আমরা জানি রানীগঞ্জে ওই কাজটা বাদ দিয়েও একটা আমাদের রানীসারে মোড়ের কাছে একটা রাস্তা ছিল, যে 33 লাখ টাকা ফান্ড হয়েছিল, ওটা ওই অবস্থায় পড়ে আছে। এরকম শহরের বিভিন্ন জায়গায় যে প্রজেক্টগুলো বলার সাথে সাথে মাননীয় সাংসদ গ্র্যান্ট করেছেন, সেগুলো একটা হতে দিচ্ছে না। এই চিত্রটা শুধু রানীগঞ্জের না, আমি রানীগঞ্জ থেকে, যেহেতু রানীগঞ্জে আমরা নেতৃত্ব দিই, আর আমি সেই সময় মাননীয় বাবুলদার রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলাম, ওই সময় আমারই হাতে ওগুলো সব স্যাংশন করানো। তো সেই হিসাবে আজকে যখন আমি দেখলাম যে ওখানে জল জমে আছে, খারাপ অবস্থা, মানুষজন মানে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে, সেই সময় আমি সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওখানে যাই এবং তাদের পরিষ্কার করে সেই ব্যাপারটা বলে, টাকা দেওয়া আছে, স্যাংশন হয়ে গেছে, তবুও কেন হচ্ছে না, তারা আমাদের কাছে জানতে চাইছে। তো আমরা স্বভাবতই আমরা যে আসল ব্যাপারটা সেটা খুলে মানুষকে বুঝিয়েছি। তাদের সেখানকার মানুষেরা প্রত্যেকে মানে মন খুলে মেয়রের এই অগণতান্ত্রিক কাজ, যেটাকে উন্নয়ন নামে তিনি সব জায়গায় বলেন আমরা উন্নয়ন চাই, তাদের নেত্রী বলেন উন্নয়ন চাই, এটা কী ধরনের উন্নয়ন? গোটা রানীগঞ্জকে এরকম করে ফেলে দিয়ে বাবুলদার বদনাম করে। বাবুলদার বদনাম হয় না, বাবুলদাকে যখন প্রথমবার উনি বদনাম করলেন তখন 72-76 হাজার, তারপরে আবার দিলেন 2 লাখ, এবারে বাবুলদাকে আমরা 3 লাখের ওপরে বিয়ে করে দেবো, তখনই হবে যোগ্য জবাব। কিন্তু আমরা আজকে এখান থেকে একটা দাবি জানাচ্ছি মাননীয় মেয়রকে যে এগুলো নিয়ে রাজনীতি করবে না, কারণ এতে মানুষের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। তাই আমরা চাই অবিলম্বে এই কাজগুলো শুরু হোক এবং বর্ষা আসার আগে।
কি পদক্ষেপ নেবেন এরপর? আমরা যদি ওটা না হয় তখন আমরা এই লকডাউনের জন্য বসে আছি, নাহলে আমরা রাস্তা অবরোধ বা যেগুলো আছে যেগুলো করলে তার টনক নড়বে সেগুলো আমরা করব। দরকার হলে আমরা মেয়রকে ঘেরাও করব, কারণ মানুষের স্বার্থে বিজেপি সর্বদা আগে। যেখানে মানুষের স্বার্থ সেখানে আমরা দৌড়ে গেছি, আমরা আগামী দিনেও যাব। এই রাস্তা আমাদের করে দিতে হবে, কেন টাকাটা এমপি ল্যাডের টাকা। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম দেবকুমার বোস, ভারতীয় জনতা পার্টির শহর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से मंगलवार को शहर के 1 नंबर वार्ड काशीराम इलाके में जरूरतमंद लोगों में सब्जियां वितरण की गई। दुर्गापुर महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से मंगलवार को शहर के 1 नंबर वार्ड काशीराम इलाके में जरूरतमंद लोगों को सब्जियां वितरण की गई। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष मिनौती हाजरा, दुर्गापुर नगर निगम MIC अमिताभ बैनर्जी, महिला तृणमूल कांग्रेस नेत्री धृति बैनर्जी जलान, सिप्रा सरकार, आसिमा चक्रवर्ती, मणिदास गुप्ता, रीना चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। राज्य नेत्री तथा हमारे स्वास्थ्यमंत्री पश्चिमबंगे चंद्रिमा भट्टाचार्य एक कर्मसूची निয়েছেন अंजलि नामे। এই अंजलि नाम दिए আমরা যে এটা দুস্থ মানুষদের সবজি দেওয়া হচ্ছে। এর আগে লকডাউন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা রকম উপায়ে ডাল, চাল এবং অন্যান্য মশলা, আলু এইসব দেওয়া হয়েছে। সবজিটা একটা নতুনত্ব, এটা আমাদের নেত্রীর মাথায় এসেছে চিন্তাটা, এবং তিনি এই কর্মসূচিটা দিয়েছেন। জুন মাসের 1, 2, 3 আমাদের জেলা প্রত্যেকটা জেলায় হবে। অনুরূপভাবে দুর্গাপুর সাব ডিভিশনে আজকে 1 নম্বর ব্লকে মহিলারা এই প্রোগ্রামটা করছে, এবং আমাদের যারা দুস্থ মানুষ আছেন তাদের আজকে সবজি তুলে দেওয়া হবে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोरोना के इस भयानक समय में भी आज अमेरिका नक्सलवादी घटनाओं से घिरा हुआ है। अमेरिका में लोकतंत्र अब्राहम लिंकन की रंगभेद विरोधी संघर्ष की परंपरा को ट्रंप प्रशासन साम्राज्यवाद के सहयोगी द्वारा मिटा दिया गया। कोरोना के इस भयानक समय में भी आज अमेरिका नक्सलवादी घटनाओं से घिरा हुआ है। अमेरिका में लोकतंत्र अब्राहम लिंकन की रंगभेद विरोधी संघर्ष की परंपरा को ट्रंप प्रशासन साम्राज्यवाद के सहयोगी द्वारा मिटा दिया गया है। राज्य के 46 वर्षीय काले जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या के विरोध में पूरे अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग एक के बाद एक ऐसी घटनाओं में आज वे न केवल नक्सलवाद पर उंगली उठा रहे बल्कि वे ट्रंप प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं। आज व्हाइट हाउस के गेट पर अमेरिकी लोगों ने पहले से ही विरोध प्रदर्शन किया है। नस्लवादी ट्रंप ने एक बंकर में शरण ली है। सोमवार को SUCI पार्टी की ओर से अमेरिकी लोगों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। SUCI दुर्गापुर शाखा की ओर से पार्टी कार्यकर्ता ट्रंप सरकार की नस्लवादी नीतियों के खिलाफ जिला कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन कोरोना स्वास्थ्य और लॉकडाउन नियमों के अनुपालन में किया जा रहा है। इसी अवसर पर SUCI नेत्री सुचिता कुंडू मुख्य रूप से उपस्थित हुई। পৃথিবী জুড়ে আজকে বিক্ষোভ হচ্ছে। আজকে এই বিক্ষোভ ধ্বনিত হচ্ছে একই সাথে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কংগ্রেস প্রভাত ঘোষের নেতৃত্বে যেমন কলকাতায় মার্কিন কনসুলেটের সামনে, দিল্লিতে মার্কিন এম্বাসির সামনে, গোটা দেশে আমাদের দলের জেলা অফিসের সামনে এই বিক্ষোভ আমরা সংগঠিত করছি। এই বিক্ষোভ একসাথে আজকে সংগঠিত হচ্ছে বার্লিনে, লন্ডনে, ফ্রাঙ্কফুর্টে, ভিয়েনায়, বোলগনায় সহ গোটা পৃথিবীতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজকে থরহরি কম্পমান, আক্ষরিক অর্থেই তারা বাংকারে ঢুকেছে। মৃত্যুর ঠিক আগেই মানুষের পুরনো প্রাচীন মানুষদের স্মরণ আছে। এইভাবেই ফ্যাসিস্ট নেতা হিটলার বাংকারে আশ্রয় নিয়েছিল। আজকে হোয়াইট হাউসও সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের সামনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে নিরাপদ নয়, তাকে আজকে বাংকারে আশ্রয় নিতে হয়েছে। আপনার পরিচয়? সম্রাট ব্যানার্জি, SUCI জেলা কমিটির সদস্য। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बीजपुर से जामुड़िया गांव अखलपुर गांव तक फायर सर्विस की सहायता से सैनिटाइजेशन करवाया गया। जामुड़िया मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में जामुड़िया स्थित मंडलपुर बीजपुर से जामुड़िया गांव अखलपुर गांव तक फायर ब्रिगेड सर्विस की सहायता से सैनिटाइजेशन करवाया गया।
जामुड़िया औद्योगिक नगरी के राजश्री स्पंज कारखाने एवं एमबी स्पंज कारखाने में भी सैनिटाइजेशन किया गया। सैनिटाइजेशन कार्य के अवसर पर जामुड़िया मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संजय अग्रवाल, प्रवीण पटवारी, मनोज टिब्रेवाल, कृष्णा अग्रवाल, मनोज मित्तल, रतन मित्तल एवं कोषाध्यक्ष सुनील सिंघानिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कोई जानते हैं कि आज हम लोगों के बीच में ये कोविड-19 ये जो कोरोना का जो एक बहुत बड़ा एक समस्या पूरे विश्व में जो फैला हुआ है, उस कोरोना की समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, गरीब स्टूडेंट लोग हैं, उन लोगों के प्रति हम लोगों का एक मन में विचार ये आया कि आज वो स्टूडेंट पढ़ तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके भी घर में जो है कहीं ना कहीं राशन की एक समस्या हम लोगों को समझ में आ रही थी। इसलिए काफ़ी दिनों के प्रयास के बाद आज हम लोग जो है इस काम को पूरा करने में सफल हुए हैं और यही नतीजा है कि आज जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को हम लोगों ने जो है राशन दिया है और हमें बहुत ही खुशी है कि इसमें हमें हर तरह का हमें सहयोग मिला है। यहाँ तक कि हमें थाने से भी सहयोग मिला है, हमारे यहाँ के जो शुभचिंतक हैं उनका भी हमें काफ़ी सहयोग मिला है। और आज ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, ये स्कूल 2005 से हम लोग चला रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं एक सहयोग की कमी की वजह से जो है इस स्कूल को हम लोग आज तक डेवलप नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम लोग ये जो बच्चों से जो फीस वगैरह की जहाँ तक बात है, उनसे हम लोग सिर्फ आज जो टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं उनकी सिर्फ सैलरी बहुत मुश्किल से हम लोग निकाल पाते हैं। इसलिए हम आशा करते हैं कि हमको कहीं ना कहीं से अगर कोई सहयोग मिले तो हम इस स्कूल को और डेवलप कर सकें, ताकि और भी बच्चों को हम यहाँ पर जो है शिक्षा के लिए हम उनको आमंत्रित कर सकते हैं। तभी मैंने ये संभव होगा अगर हम स्कूल को और इस स्कूल की जो अधूरा काम है उसको जब हम पूरा कर लेंगे तब हम और भी बच्चों को यहाँ पर हम एजुकेशन के लिए ले पाएंगे। इसमें हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, मैं सभी से कुछ ना कुछ आशा करूँगा कि उनका सहयोग रहेगा, ताकि आने वाले दिनों में हम यहाँ पर शिक्षा का भी विकास कर सकें और लोगों को यहाँ पर जब शिक्षा का विकास करेंगे तभी हमारे देश का भी विकास संभव है, क्योंकि बिना शिक्षा के बिना मनुष्य अधूरा है। इसलिए मैं सभी की सहयोग की आशा रखता हूँ और आगे भी मैं ये सहयोग की आशा रखता रहूँ। स्कूल डेवलपमेंट इसमें हमारे जो है सबसे बड़े जो हमारे जयदीप मुखर्जी साहब जो हमेशा हर एक सामाजिक कार्यों में आगे लगे रहते हैं, उन्होंने हम हमेशा देखा, अभी हाल में उन्होंने एक बहुत बड़ा मैंने यज्ञ किया। मैं समझता हूँ कि जो ब्लड डोनेशन कैंप का 14 दिन का जो आयोजन किया था, उसमें 455 यूनिट का जो करके डोनेशन का जो रिकॉर्ड बनाया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। इसलिए इस संदर्भ में मैं हमारे जयदीप मुखर्जी साहब को मैं कहूँगा कि वो भी इस संदर्भ में 2 शब्द कहें। जामुड़िया से दिलीप साहब की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब बारी एक छोटे से ब्रेक की, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস 100% शुद्ध, 100% स्वाद। BM and Sons, a complete shop, जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM and Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
जामुड़िया बोरो एक अंतर्गत 12 नंबर वार्ड स्थित निंघा गोविंद नगर में गुरुद्वारा युवा कमेटी की ओर से गोविंद नगर मोड़ NH 2 मुख्य सड़क के पास कोरोना संकट की घड़ी में पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल एवं बसों में आने जाने वाले राहगीरों को फ्राई, जीरा, चावल, पूड़ी, सब्जी, फ्रूटी, शरबत इत्यादि वितरण किया गया। जामुड़िया बोरो एक अंतर्गत 12 नंबर वार्ड स्थित निंघा गोविंद नगर में गुरुद्वारा युवा कमेटी की ओर से गोविंद नगर मोड़ NH 2 मुख्य सड़क के पास कोरोना संकट की घड़ी में पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल एवं बसों में आने जाने वाले राहगीरों को फ्राई, जीरा, चावल, फ्रूटी, शरबत का वितरण किया गया। इस मौके पर जोनी सिंह, बॉबी पड्डा, गुरमीत सिंह, बीका सिंह इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी निर्देशों का पालन करते हुए ऑटो तथा टोटो में नो मास्क नो सीट का पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी निर्देशों का पालन करते हुए ऑटो तथा टोटो में नो मास्क नो सीट का पोस्टर लगाया गया। जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया था, जिसके तहत वाहनों का परिचालन हो रहा है, परंतु ऑटो एवं टोटो में बैठने वाले सवारियों के साथ साथ चालकों को भी जागरूक करने के उद्देश्य से INTTUC के नेता राजू आहलूवालिया ने वाहनों में पोस्टर चिपकाया। साथ ही साथ टोटो एवं ऑटो चालकों को सरकार द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि ऑटो में 2 से अधिक सवारी नहीं ले जा सकते। इसके अलावा ऑटो में बैठने वाले सवारियों का আজকে আমরা অটোতে স্টিকারগুলো লাগাচ্ছি, কাদের পোস্টারগুলো লাগাচ্ছি INTTUC পক্ষ থেকে নো মাস্ক নো সিট। মাস্ক ছাড়া কোনো যাত্রীকে গাড়িতে চাপানো যাবে না, মাস্ক পরে গাড়িতে চাপতে হবে। আর যেটা আমাদের প্রশাসনে আমার সরকার যা বলে দিচ্ছে 2টা প্যাসেঞ্জার থেকে বেশি যেতে পারবে না, সেটা আমরা ফলো করছি। 27 তারিখ থেকে যখন থেকে আমাদের সরকার পারমিশন দিয়েছে অটো আর টোটো চালানোর জন্য, সেদিন থেকে আমাদের অটো আর টোটো চালকরা মানুষের স্বার্থে সেবা দিচ্ছেন। আর অনেকগুলো অটো আছে চালকরা, টোটো চালকরা দিনভর 50 টাকা রোজগার করছেন, কিন্তু মানুষের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছেন, সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। আমি আমাদের অটো ড্রাইভার, আমার টোটো ড্রাইভারদেরকে যারা আছেন তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। তারা মানুষের স্বার্থে কাজ করছেন, মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এই সংকটকালের যে করোনা ভাইরাসের যে সংকটকালীন দিনগুলো চলছে, অটো চালক এবং টোটো চালকরা যেভাবে সেবা দিচ্ছেন, তার জন্য আমি সমস্ত কর্মীদেরকে ধন্যবাদ জানাই। बोले आज जितने भी ऑटो एवं टोटो चलते हैं आसनसोल शिल्पांचल में, सभी गाड़ियों में हम लोग स्टिकर लगा रहे हैं नो मास्क नो सीट। लोगों को हम लोग सचेतन कर रहे हैं कि आप मास्क पहन के गाड़ी में चढ़िए। और हमारी सरकार एवं प्रशासन जो बोला है 2 यात्री से ज़्यादा ऑटो में नहीं चलेगा, उसका पालन कीजिए। और ये भी हम लोगों ने सख्त हिदायत दी है। प्रत्येक सप्ताह हम लोग हर मोड़ चौराहों पर हम लोग जो है ऑटो ड्राइवरों को हम लोग सचेतन कर रहे हैं कि लोगों से इस समय में, इस संकटकालीन के समय में ज़्यादा भाड़ा लेना नहीं चलेगा, अनाप शनाप भाड़ा लेना नहीं चलेगा। आप हमारी सरकार के पास लोगों के साथ खड़े रहिए, कंधा से कंधा मिलाकर। ये जो संकटकालीन दिन है ये गुजर जाएगा। और हम जो हैं देख रहे हैं कि हमारे ऑटो एवं टोटो चालक जो हैं लोगों की सेवा कर रहे हैं। अभी तक कोई भी शिकायत ऐसी नहीं आई किसी भी ऑटो चालक ने अनाप शनाप भाड़ा लिया, ऐसी कोई हमारे पास शिकायत नहीं है। और लोग बहुत खुश हैं कि बस नहीं चलने के बावजूद ऑटो और टोटो जिस तरह से लोगों की सेवा दे रहे हैं, उससे लोग खुश हैं। ये प्रमाण होता है कि हमारी सरकार जो है पश्चिम बंगाल में माँ माटी मानुष की सरकार लोगों की सेवा में और लोगों के हित में काम करती है। किसके तरफ से आज आप लोग ये INTTUC आसनसोल। रानीसर शीतलदास 5 नंबर कॉलोनी में साधन सिंह के नेतृत्व में करीबन 60 से 70 जरूरतमंदों को राशन सामग्री प्रदान की गई। रानीसर शीतलदास 5 नंबर कॉलोनी में साधन राय के नेतृत्व में करीबन 60 से 70 जरूरतमंदों को राशन सामग्री प्रदान की गई। इस मौके पर समाज सेवी तृणमूल नेता साधन सिंह, MIC दिवेंदु भगत, दिनेश कुमार रॉय, माधव बनर्जी, KKSC के सेक्रेटरी देवनंदन पासवान मुख्य रूप से उपस्थित रहे तथा लोगों में मास्क वितरण के साथ साथ कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। बहुत लोग जो है यहाँ पर गरीब तबके के लोग हैं जो डेली कमाते खाते हैं, उन सबों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है यहाँ पर आज 60 लोगों के बीच में हम लोग आज यहाँ पर जो है चावल, दाल, आलू, प्याज एवं मास्क के साथ में हम लोग दिए हैं ताकि लोग जागरूक रहें। 10 কলোনিতে যাদের প্রয়োজন আছে আর যেসব মানুষ খুব প্রয়োজন তাদেরকে চাল, ডাল,
আলু পেঁয়াজ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হলো এবং তার সঙ্গে মাস্কও দেওয়া হলো এবং মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা এখানকার যুব সম্প্রদায়রা বরাবর করে যাচ্ছে যে প্রতিনিয়ত আপনারা মাস্ক পরুন এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন। যদি হ্যান্ড স্যানিটাইজার না থাকে তাহলে হাত দিয়ে সাবান অন্ততপক্ষে 3 বার অন্ততপক্ষে দিনে আপনারা ধুন এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে চলুন। এটা এখানকার যুব সম্প্রদায়ের নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে এই এলাকার মানুষের रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब बारी है आज के हेडलाइंस की। अमृतनगर तृणमूल कांग्रेस की ओर से पश्चिम बंगाल इमरजेंसी रिलीफ फंड में 1,69,000 की 140 चेक प्रदान की गई। रानीसर इलाके में सड़क मरम्मत का कार्य नहीं होने की वजह से वहां के स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। दुर्गापुर महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से इलाके में जरूरतमंद लोगों में सब्जी वितरण की गई। SUCI पार्टी की ओर से अमेरिकी लोगों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। फायर सर्विस की सहायता से जामुड़िया के विभिन्न इलाकों को सैनिटाइजेशन करवाया गया। चित्रा सिनेमा हॉल के पीछे पंजाबी पाड़ा में एक घर के अंदर से 12 वर्षीय किशोर के एक शव को खून से लथपथ बरामद किया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।